how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous videos we have completed our first chapter of our Madhya Pradesh, a historical perspective. So today we will start our chapter number 2, Madhya Pradesh during Vedic period. Vedic period is the Vedas have a glorious place in Indian culture. Vedas are a treasure of Indian culture. Vedas are the ancient scriptures of Aryans. Just like I make us see the material world, Vedas introduce us to spiritual side of the world. It is believed that the Vedas were composed between 3000 BC to 1500 BC. This period is called the Vedic age. The period when the Rig Veda was composed was called pre-Vedic period. It is believed that the Samved, Yajurved and Atharvaved were composed during post-Vedic period. स्टूडेंट्स, जो वेद हैं हमारे भारतीय सभ्यता के में ग्लोरियस स्थान प्राप्त करते हैं. वेद है जो इंडियन कल्चर का खजाना कहलाता है. वेद एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं जो आर्यंस के समय पे लिखे गए थे. आर्यंस के एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं. जिस तरह से आँख हमें बाहरी वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है, उसी तरह से जो वेदा है वो हमें वर्ल्ड के स्पिरिचुअल साइड से इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो वेदास जो ऐसा कहा विश्वास है कि जो वेद हैं वो 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में लिखे गए थे. इस पीरियड को वैदिक एज कहा जाता है. इस द पीरियड में जब ऋग्वेद कंपोज हुआ उसे प्री वैदिक पीरियड कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है वो पोस्ट वैदिक पीरियड में कंपोज किए गए. Now, according to Puranic tales, the ashrams of the sages Kapil Muni and Markanda Rishi were situated in the forest area of Amarkantak. ऐसा पौराणिक कथाओं में जाना जाता है कि आज जो कपिल मुनि और मार्कंड ऋषि थे वो अमरकंटक के जो फॉरेस्ट एरिया थे वहाँ पर वो वहाँ के संत थे. द रिवर नर्मदा एंड सोन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक. ये आप सबको मालूम है कि सोन और नर्मदा दोनों का उद्गम अमरकंटक स्थल है. So it is here that the sages come for meditation. It is a tradition to have pradikshina of the Narmada. That means one has to go from its origin to its end and come back to the origin on foot. जिसका मतलब है कि ओरिजिन से निकलकर पैरों से जो यात्रा है ओरिजिन से निकलकर उसके एंड में करना और वापस उसके ओरिजिन तक बाय फुट पहुंचना उसे प्रदक्षिणा कहते हैं. The holy feet of both Lord Ram and Lord Krishna sanctified the land of Madhya Pradesh. भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही ने मध्य प्रदेश की भूमि को पवित्र किया. There is a mention in both the Ramayana and the Mahabharata that Agastya Muni went to the south after crossing the Vindhya mountain. रामायण और महाभारत दोनों में उल्लेख किया गया है कि अगस्त्य मुनि जो थे वो साउथ जब गए तो उन्होंने विंध्य माउंटेन को क्रॉस किया था. The Vindhya have divided India into north and south. तो विंध्य जो माउंटेन है वो इंडिया को दो भागों में विभाजित करता है, नॉर्थ और साउथ में. While sending his army of monkeys, Vanar Sena, in search of Sita, Sugriv ordered them to begin their search from the Vindhya and then proceed to the south after crossing the Narmada, Godavari and Krishna. कि जब मंकीज को भेजा गया था, आर्मी वानर सेना को भेजा गया था सीता माता की खोज के लिए, उस समय सुग्रीव ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि विंध्य से शुरू करना है और उसके बाद साउथ में जाना है, तो नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा को क्रॉस करते हुए जाना है. लॉर्ड राम स्टेड फॉर सम टाइम इन चित्रकूट. भगवान राम ने कुछ समय चित्रकूट में अपने वनवास के समय बिताया था जो कि सतना के पास है. And then proceed to Dandakaran and stay there for a long time. Now Dandakaran spread from Chitrakoot to Batsar, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक अब छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है. Now Lord Ram's trial went through the forest in Satna, Shahdol and South Kaushal or present Chhattisgarh. Now the ashram of sages Valmiki, Atri, Sharbhang etc. were situated among the forest of Dandak. Now, a large area of Gujarat, Khandesh and Malwa was within their territory. The known names of the kings of this dynasties are Krishnaraj, Shankargan and Buddharaj. Now, when Harshvardhan came, in the 7th century, most of the northern
India was under the rule of Vardhan dynasty. The empire of Harshvardhan spread from Himalayas to Narmada and Chalukya ruled over the area in south of Narmada. कि वर्धन डायनेस्टी उस समय 7th सेंचुरी में नॉर्दर्न इंडिया में रूल में थी. तो जो एम्पायर था वर्धन ने अपना जो एम्पायर था हर्षवर्धन ने हिमालय से नर्मदा तक किया था और चालुक्य ने साउथ से नर्मदा तक का उनका स्प्रेड था एम्पायर. नाउ दिस मीन्स दैट मध्य प्रदेश वॉज मेनली अंडर द रूल ऑफ 2 डायनेस्टीज. तो मध्य प्रदेश जो था वो 2 रूल्स के अंदर में था, 2 डायनेस्टीज के, वर्धन डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी. Now Purans have reference to Ujjain situated at the eastern bank of river Shipra. पुराणों में रेफरेंस है उज्जैन नगरी का जो ईस्टर्न घाट में शिप्रा नदी के किनारे पर है. The ancient city of Ujjain is regarded as a center of Indian culture. कि मध्य भारत का जो सभ्यता थी वो उज्जैन से रिगार्डेड है. उसका इम्पोर्टेंस ये है, पुराणों में डिस्क्राइब किया गया है कि उज्जैन के कई नाम हैं. उज्जैन, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुदिनी, ये सब उज्जैन के नाम है, डिस्क्राइब किए गए हैं पुराणों में. जो बड़े बड़े संत थे, संदीपनी, महाकात्यायन बहस, सिद्धसेन, दिवाकर, भरथरी, वराहमीर एंड बाणभट्ट यहाँ पर डीपली कनेक्टेड है उज्जैन से. पुराण और महाभारत में ये भी रेफर किया जाता है कि जो कृष्ण, बलराम और सुदामा थे उन्होंने जो अपनी एजुकेशन थी वो संदीपनी आश्रम में जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है वहां पर पूरी की थी. नाउ मोस्ट इवेंट्स ऑफ द्वापर युग, द्वापर युग के समय पर बैटल ऑफ महाभारत, कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं वो भी यहाँ पर हुए थे. नाउ इन दिस बैटल लॉर्ड कृष्णा वॉज विथ द पांडव्स एंड ही एक्टेड एज अर्जुनास चैरिटियर. ये आप सब जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब उस समय पर जो कृष्ण थे वो पांडव की तरफ से थे और वो अर्जुन के चैरिटियर बने थे, सारथी बने थे. नाउ देयर आर रेफरेंसेस इन द महाभारत अबाउट सेवरल प्लेसेस एंड डायनेस्टीज इन मध्य प्रदेश. तो इस तरह से महाभारत में कई जगह बताई गई हैं, कई डायनेस्टीज थी जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड थी और हिस्टोरिकल इवेंट्स में उन्होंने पार्ट लिया था. लाइक अकॉर्डिंग टू महाभारत, किंग नील रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ माहिष्मती. तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने जो कौरवों की तरफ से थे वो भी मध्य प्रदेश की कुछ किंगडम से रिलेटेड थे. लाइक चेड़ी विच इज एक्सटेंडेड अप टू बेतवा इन वेस्ट यमुना. नाउ किंगडम कंप्राइज्ड ऑफ द होल ऑफ बुंदेलखंड. किंग शिशुपाल, जो शिशुपाल थे वो भी महाभारत में आपने उनका नाम सुना है. नाउ स्टूडेंट्स, लॉर्ड कृष्णा डिफीटेड जरासंध एंड किल्ड शिशुपाल. देयर इज अ रेफरेंस ऑफ त्रिपुरी इन द महाभारत. ये सारे रेफरेंसेस आपको महाभारत में देखने को मिलते हैं. नाउ देयर इज शिव टेम्पल इन असरगढ़ इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट. एक शिव टेम्पल है बुरहानपुर में. ऐसा माना जाता है कि जो अश्वत्थामा है वो लॉर्ड शिवा के वहां पर वर्शिप करते थे. पांडव केव्स आर सिचुएटेड इन पचमढ़ी. पांडवों की जो गुफा है वो पचमढ़ी में सिचुएटेड है. तो एज पर फोक लोर्स पांडव स्टेड फॉर सम टाइम इन दीज केव्स. तो ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे वो भी अपने जब उनको भी वनवास का टाइम था, अज्ञातवास में थे, वो भी कुछ समय पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में उन्होंने स्टे किया था. सो हियर स्टूडेंट्स यू सी दैट मध्य प्रदेश ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, मध्य प्रदेश वैदिक पीरियड में भी उतना ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा था. जब बड़े बड़े जो राजा थे, जो भगवान थे, उन्होंने भी इस धरती पर कदम रखा और इसे पवित्र किया. सो ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू वंस अगेन अंडरस्टूड इट वंस अगेन.